1990 సంవత్సరంలో డాక్టర్ బాబ్జీ గారి ప్రోత్సాహంతో ప్రారంభించిన మాంటిసోరీ స్కూల్ ప్రారంభంలో కేవలం 42 మంది విద్యార్థులే. సెక్రటరీ అండ్ కరెస్పాండెంట్ ఎం రాంప్రసాద్ గారు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందించడమే లక్ష్యంగా సంస్థను నిర్వహించిన తీరు స్కూల్ కు మంచి గుర్తింపును తెచ్చింది. ఎంఎస్ వాసు గారి సహచర బృందం సైన్స్ ఫెయిర్ నందు విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చి 2002లో మండల స్థాయి, జిల్లా స్థాయి మరియు రాష్ట్ర స్థాయి నందు ప్రథమ స్థానంతో ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీ తన ప్రతిభను లోకానికి చాటింది. విద్యార్థులను పేరు పేరునా పలకరిస్తూ పేరెంట్స్ సలహాలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే ప్రిన్సిపాల్ గా వసంతలక్ష్మి గారు, నైపుణ్యంతో పాఠ్యాంశాలు బోధించే శ్రీపాద సీతారామ శర్మ గారు అకాడమిక్ డైరెక్టర్ గా అనేక సంవత్సరాలుగా బాధ్యతలు వహిస్తున్న అనుభవజ్ఞులైన సిబ్బందితో పాటు వందలాది మంది ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల అభివృద్ధి కొరకు కృషి చేస్తున్నారు. 1990లో అతి సాధారణంగా ఏర్పాటు చేసిన మాంటిసోరీ స్కూల్ మారుతున్న కాలానికి తగ్గట్టుగా వసతులు పెంచుకుంటూ నూతన విద్యా విధానానికి అనుగుణంగా అధునాతన టెక్నాలజీ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ అత్యుత్తమ విద్యా సంస్థగా ఎదిగింది. ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీ అంటే చదువులో నెంబర్ 1, ఆటలలో నెంబర్ 1, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో నెంబర్ 1. విద్యార్థి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కు చిరునామా ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీ స్కూల్, ద లీడర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. Hello children, this is Usha. Today I am going to say grammar part for 7th to 10th classes, and it will be useful up to 10th class. Public exam we are having 4 marks for them, almost 2 bits and 2 from the paragraph questions. Upasarg और प्रत्यय. Upasarg और प्रत्यय. Firstly, I would like to say about उपसर्ग. उपसर्ग means उपसर्ग यानी जो शब्दांश या किसी सार्थक खंड जो शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में विशेष अर्थ लाता है या उसके अर्थ में एक प्रकार की नयापन आता है, उसको उपसर्ग कहता है. जो शब्दांश शब्द के पहले जोड़कर या शब्द के आगे जोड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल जाता है या उस शब्द के अर्थ में विशेषता लाता है, उसे उपसर्ग कहता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग जस्ट फॉर 2 points अहिंसा. इफ यू टेक हिंसा, इट इज one word, it is a meaningful word हिंसा. If you add a further in front of it, a plus hinsa, ahimsa, it will change the meaning of the himsa word. Totally opposite it has become. So in that way upasarg means which will be added in front of the word. शब्द शब्द के पहले जोड़कर जो उस शब्द के अर्थ बदल जाता है उसे उपसर्ग कहता है. अहिंसा. डर. Same another example, डर. डर के आगे नी जोड़ने से उसका अर्थ बदल जाता है निडर. उपसर्ग जो अक्षर या खंड शब्द के पहले जोड़ता है और उसके अर्थ में विशेषता या विपरीत अर्थ लाता है, उसे उपसर्ग कहता है. So about this, today I am going to say some more examples about this. Some of the examples today I am going to say. अति उपसर्ग. अति का अर्थ होता है अधिक. अति का अर्थ होता है अधिक. उससे बनने वाले कुछ शब्द मैं दिखाता हूँ. अति, अतीन्द्र, अतीन्द्रिय या अत्युत्तम. अत्युत्तम. Here अतीन्द्रिय, अति प्लस इंद्रिय. अति उपसर्ग जोड़ने से इंद्रिय अतीन्द्रिय बनता है. अत्युत्तम. अत्युत्तम का अर्थ है अधिक. अति का अर्थ है अधिक. अत्युत्तम. उत्तम means the best. अति उत्तम. अति जोड़ने से the best. It means still more best. It will be getting the meaning. For this अति का शब्दार्थ है अति उपसर्ग जोड़ने से अतीन्द्र, अत्युत्तम. For that still more examples I will show you. Next one is coming to अनु. अनु का अर्थ है पीछे या उसके समान. पीछे या समान होता है. अनु उपसर्ग जोड़ने से कुछ उदाहरण अनुरूप.
बनता है अनु प्लस करण, अनुकरण। उसी प्रकार आ उपसर्ग से अनाचार, अलौकिक, अस्वीकार। आ उपसर्ग जोड़ने से आ प्लस नाचार, आ प्लस नाचार, अलौकिक, आ प्लस लौकिक, अस्वीकार, आ प्लस स्वीकार। इसी प्रकार तीसरा है 14 है अप। अप उपसर्ग जोड़ने से कुछ उदाहरण है अपव्यय, अप प्लस व्यय। दूसरा है अपवाद, अप प्लस वाद, अपहरण, अप प्लस हरण, जैसे अप प्लस हरण। अप उपसर्ग जोड़ने से बनता है अपहरण। उसी प्रकार अभी, अभी, अभिनंदन, अभियान। अभी उपसर्ग जोड़ने से बनता है अभिनंदन, अभी प्लस नंदन। उसी प्रकार दूसरा है अभियान, अभी प्लस यान, अभ्यास, अभी प्लस। अभी उपसर्ग जोड़ने से बनने वाले ये कुछ उदाहरण है। और उप उपसर्ग जोड़ने से उपाध्यक्ष और उपस्थिति, उपवन। उपाध्यक्ष उप प्लस अध्यक्ष, उपस्थिति उप प्लस स्थिति, उपवन उप प्लस वन। इस प्रकार उप उपसर्ग जोड़ने से बनने वाला शब्द है। और 14 है अधि, अध्यक्ष, अधि प्लस यक्ष, अधिनियम, अधि प्लस नियम, अध्यात्म, अधि प्लस आत्म। See the example, अधि प्लस आत्म। इस प्रकार कुछ उपसर्ग जोड़ने से उन शब्दों का अर्थ कुछ अलग बनता है या कुछ विशेषता आता है। These are the 7 examples. Now I am going to say examples of उपसर्ग। अति, अति एक उपसर्ग है, इसका अर्थ है अधिक। उस शब्द खंड का भी अर्थ होता है। इस शब्द खंड का अर्थ है अति, का अर्थ है अधिक। अतीन्द्र, इंद्र, अतीन्द्रिय, इंद्रिय शब्दांश है। उस शब्द के अति जोड़ने से क्या होता है? अतीन्द्र बनता है। It means it become more than that meaning. अयुक्ति, अत्युक्ति, युक्ति शब्दांश है, उसकी अति जोड़ने से क्या होता है? अति प्लस उक्ति, अति अधिक बन जाता है, उसका अर्थ में अधिकता आता है। अत्युक्ति, अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम। अति का अर्थ है अधिक और उत्तम, उत्तम is the good thing and अत्युत्तम the best it will become. अति प्लस उत्तम, अत्युत्तम। उसी प्रकार कुछ और उदाहरण है। और दूसरा है अनु। दूसरा उपसर्ग है अनु। अनु शब्द का अर्थ है पीछे या समान, उसके पीछे या उसका समान, उस प्रकार का अर्थ बनता है अनु शब्द खंड का। वो शब्दांश के जोड़ने से अनुरूप, अनु प्लस रूप, इसके पीछे अनुरूप, उसके पीछे का अर्थ बनता है अनु प्लस रूप। अनुपात, अनु प्लस पात यानी उसके समान। अनु का अर्थ यहाँ होता है समान, अनुपात, अनु प्लस पात। अनुकरण, अनु प्लस करण, अनु का अर्थ होता है उसका समान ही, अनु प्लस करण से बनता है उसका अनुकरण। उसका कुछ और उदाहरण इस प्रकार है। और तीसरा उदाहरण है आ। आ उपसर्ग या शब्द खंड, आ उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं या हीन। हीन भी होता है या नहीं, नेगेटिव सेंस इट विल बी। अनाचार, आचार का अर्थ है ट्रेडिशन, अनाचार। अन्न प्लस आचार, अन्न, इट मीन्स टोटली नेगेटिव मीनिंग वी गॉट इट फॉर दिस, अनाचार। अलौकिक, लौकिक को अन्न जोड़ने से अन्न प्लस लौकिक, अलौकिक। उसी प्रकार अस्वीकार, आ प्लस स्वीकार,
आ जोड़ने से, आ उपसर्ग जोड़ने से अस्वीकार, आ प्लस स्वीकार बनता है। टोटली नेगेटिव सेंस हियर नहीं या हीन, नेगेटिव सेंस it will become opposite meaning we will get with the उपसर्ग आ जोड़ने से। और उदाहरण है ये, और अब होता है 14 उपसर्ग मीन्स 4th उपसर्ग अप। अब उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या हीन। इट इज ऑल्सो टोटली नेगेटिव सेंस वी विल गेट, बुरा या हीन, इट मीन्स नेगेटिव मीनिंग वी विल गेट। अपव्यय, व्यय का अर्थ है टू स्पेंड, अपव्यय अनवेस्टेड, वेस्टली टू स्पेंड, अपव्यय मीन्स अप प्लस व्यय। उसी प्रकार और एक उदाहरण है अपवाद, अप प्लस वाद, यानी उपसर्ग शब्द के आगे जोड़ने से उस शब्द का अर्थ बन जाता है, अलग या विशेषता आता है। अपहरण, अप प्लस हरण, यू सी अप प्लस हरण, अपहरण। उसी प्रकार उसका कुछ और उदाहरण है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अभी। अभी उपसर्ग का अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर। इस शब्द खंड का अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर। अभी उपसर्ग जोड़ने से अभिनंदन, अभी प्लस नंदन, अभी प्लस नंदन, अभिनंदन। उसी प्रकार दूसरा शब्द है अभियान, अभी प्लस यान, अभी उपसर्ग जोड़ने से यान शब्दांश का अर्थ बनता है अभियान। नेक्स्ट अभ्यास, उसका उदाहरण इसी में उसका अलगपन इस प्रकार होता है, अभी प्लस यान, अभियान। कुछ और उदाहरण है ये। नेक्स्ट वन इज उप, उपसर्ग। उप उपसर्ग का अर्थ है निकट या छोटा। इस प्रकार का अर्थ में उप उपसर्ग को उपयोग करता है। और ये उपसर्ग उप जोड़ने से उपाध्यक्ष, उप प्लस अध्यक्ष, अध्यक्ष को उप जोड़ने से या छोटा, अध्यक्ष से छोटा, उपाध्यक्ष, उप प्लस अध्यक्ष। उपस्थिति, उप प्लस स्थिति। उपवन, उप प्लस वन, वन यानी बिग, फॉरेस्ट इट विल बी उपवन, इट मीन्स स्मॉल गार्डन इट विल बी, इट मीन्स छोटा, उप प्लस वन, उपवन, इट मीन्स स्मॉल गार्डन इट विल बी द मीनिंग। और कुछ इसका उप उपसर्ग से बनने वाले कुछ और उदाहरण है ये। और नेक्स्ट कमिंग टू दी सेवंथ वन, अधि। अधि का अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर। इन अर्थों में इसका उपयोग करता है अधि या श्रेष्ठ, इट मीन्स द ग्रेट, या इसके ऊपर, ऑन दी इट विल बी। नेक्स्ट हियर फॉर दैट एग्जांपल्स आर अध्यक्ष, अधि प्लस यक्ष, अध्यक्ष। अधिनियम, अधि प्लस नियम। नेक्स्ट अध्यात्म, अधि प्लस आत्म, अध्यात्म, अधि प्लस आत्म। इसके उदाहरण के लिए आप कुछ और उदाहरण, अधि उपसर्ग से बनने वाले कुछ और उदाहरण है ये। नेक्स्ट वन इज 8 वन, आ उपसर्ग। आ का शब्द खंड का अर्थ है ओर या समीप तक। इस प्रकार का अर्थ बनता है आ उपसर्ग के या शब्द खंड के। आ उपसर्ग जोड़ने से आकाश, आ प्लस काश। उसी प्रकार दूसरा है आरंभ, आ प्लस दम। नेक्स्ट आरोहण, आ प्लस रोहन, इस प्रकार बनता है आ प्लस रोहन, आरोहण। इसके लिए कुछ और उदाहरण है ये। नेक्स्ट वन इज प्रति। प्रति उपसर्ग का अर्थ है प्रत्येक या विरुद्ध, प्रत्येक या विरुद्ध। इस प्रकार का अर्थ बनता है प्रति उपसर्ग से। इस प्रकार का अर्थ बनने से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। प्रति वर्ष, वर्ष एक शब्दांश है, शब्दांश के उपसर्ग प्रति जोड़ने से प्रति वर्ष बनता है। प्रतिशोध, प्रति उपसर्ग प्लस प्रति प्लस शोध, प्रतिशोध। प्रतिकार, प्रति प्लस कार, इस प्रकार प्रति प्लस कार।
इस प्रकार प्रति उपसर्ग जोड़ने से उस शब्द का कुछ अलग शब्दांश बनता है। इसके लिए कुछ और उदाहरण है ये। उत उपसर्ग का अर्थ है श्रेष्ठ या ऊपर, श्रेष्ठ या ऊपर, इट मींस द बेस्ट इट कैन बी, या इसके ऊपर ऑनिक इट कैन बी। इस प्रकार का उत उपसर्ग का अर्थ बनता है। और उत उपसर्ग बनने से कुछ उदाहरण है। उन्नति, उत प्लस नति, उन्नति का कंठ इस प्रकार होता है, उत प्लस नति, उन्नति। उद्घाटन, उत प्लस गार्डन, here this word will be changing just if you have observed. Here ta, ud, ta it will come, and here da, instead of da we will be having ta. Ud plus garden, uttam, ud plus ma, ud plus उत्तम। इस प्रकार उत उपसर्ग से बनने वाले कुछ और उदाहरण है ये। नेक्स्ट कमिंग टू दी प्रा। प्रा उपसर्ग का अर्थ है आगे या अधिक। इस अर्थ, इन अर्थों से ये प्रा उपसर्ग जोड़ने से एक शब्द के लिए प्रक्रिया, क्रिया का अर्थ है टू डू दी वर्क। प्रक्रिया इट मींस टू डू दी वर्क, अधिक, to do the more and more work. Prakriya it will be the meaning for that. Same way pravaha, pra plus vaha, vaha the flow, pravaha it means more, it will be flowing, pravaha. Same way prakyat, kyat means famous, prakyat the best, it means more famous it will be. For example इसका खंड है प्रति plus kyat, prakyat. The next one is बी। बी उपसर्ग का अर्थ है विशिष्ट या भिन्न, इट मींस सेपरेट और सम स्पेशल मीनिंग इट विल कम। बी उपसर्ग, इस उपसर्ग का अर्थ ये इस प्रकार होता है। और बी उपसर्ग से विकास, बी प्लस कास, विवाद, बी प्लस वाद, विस्मरण, बी प्लस स्मरण, इसका खंड इस प्रकार बी प्लस स्मरण। इस प्रकार एक शब्दांश के आगे उपसर्ग, बी उपसर्ग जोड़ने से ये कुछ उदाहरण है। इसके लिए कुछ और अधिक उदाहरण ये इस प्रकार है। नेक्स्ट वन इज सु। सु उपसर्ग जोड़ने से, सु का अर्थ है अच्छा या अधिक। इन धातुओं से इस सु उपसर्ग का उपयोग करता है। फॉर एग्जाम्पल सुपुत्र, सु प्लस पुत्र, पुत्र का अर्थ है सन, सुपुत्र means a good son. The meaning here su we will get for good. Sudar, su plus dar, sugandh, su plus gandh, इसका खंड इस प्रकार होता है su plus gandh. Means here the meaning for su we will get more या अधिक, अच्छा, good. This type of meaning we will get for this उपसर्ग। इनके लिए कुछ और एक उदाहरण इस प्रकार है। Up to now we had completed उपसर्ग and now प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ है जो शब्दांश, शब्द के, up to now we had known about उपसर्ग। उपसर्ग भी शब्द के आरंभ में जोड़ने से शब्द का अर्थ बदलता है। अब प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ है शब्दांश के पीछे, मीन्स अंत में, शब्दांश के अंत में जोड़ने से उस शब्द का अर्थ बदलता है। एग्जाम्पल्स राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, यह शब्द है राष्ट्र। राष्ट्र शब्द के ई प्रत्यय उपसर्ग जोड़ने से राष्ट्रीय बनता है। यानी शब्दांश के अंत में, एट द एंड ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड, इफ द शब्दांश जोड़ने से, इफ वी ऐड द वर्ड, then there will be a meaning change for the word which we had written first, and that will be known as प्रत्यय। प्रत्यय जोड़ने से उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। प्रत्यय यानी शब्दांश के पीछे या अंत में जोड़ने से उस शब्द का जो अर्थ बदलता है उसे प्रत्यय करता है। प्रत्यय का कुछ उदाहरण मैं देता हूँ। Some examples I am going to say for you. ई प्रत्यय, मजदूरी, मजदूरी शब्दांश का उपस प्रत्यय ई इस प्रकार ईकार में बनता है मजदूर
मजदूर प्लस ई, तैरात्री, तैराक प्लस ई, तैराकी ई जोड़ने से ई इस प्रकार बनता है नयनी, नयन प्लस ई, बीमारी, बीमार प्लस ई, उसका कांड इस प्रकार है, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल फॉर यू, बीमार प्लस ई, बीमारी, ई इस प्रकार ई, ता, नेक्स्ट वन इज ता प्रत्यय, ता प्रत्यय से शिशुता, शिशु शब्दांश है, इसको ता प्रत्यय जोड़ने से शिशुता बनता है, मनुष्यता, मनुष्य प्लस ता, मनुष्य प्लस ता, दानवता, दानव प्लस ता, नेक्स्ट वन इज मानवता, मानव प्लस ता, जैसे उसका एक कांड है, जैसे एन एग्जाम्पल, मानव प्लस ता आई हैव रिटन हियर। And next one is त्वा, त्वा प्रत्यय जोड़ने से, त्वा प्रत्यय जोड़ने से पुरुषत्व, पुरुष प्लस त्वा, यानी पुरुष शब्दांश के अंत में त्वा, if you add it then it will be the meaning will be changed to पुरुषत्व, भाववाचक it will become, बंधुत्व, बंधु प्लस त्वा, स्त्रीत्व, स्त्री प्लस त्वा, here just I have given an example, I have written an example for you, स्त्री प्लस त्वा, और नेक्स्ट वन इज इक, इक प्रत्यय जोड़ने से धार्मिक, धर्म प्लस इक, here see e this side it will be short e, धर्म प्लस इक, धार्मिक, नागरिक, नागर प्लस इक, सामाजिक, समाज प्लस इक, just I had written an example here see, समाज प्लस इक, सामाजिक, still more examples you can find out, I will show you some more examples for this, for every pratyay, still more some more examples I had given you there. And next one is it, it pratyay जोड़ने से आनंदित, आनंद प्लस it, see here, first one short e, it, same way समाहित, समाह प्लस it, हर्षिक, हर्ष प्लस it, हर्षित, हर्ष प्लस it, example I have written here. And next one is मान, मान प्रत्यय जोड़ने से बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मान, उस शब्द का अर्थ कुछ बदलता है, गतिमान, गति प्लस मान, मान प्रत्यय जोड़ने से गतिमान बनता है, here I have written an example, बुद्धि प्लस मान। And next one is वाला उपप्रत्यय, खाने वाला, खाने प्लस वाला, पीने वाला, पीने प्लस वाला, लिखने वाला, लिखने प्लस वाला, यह वाला प्रत्यय है, here the example I have written, लिखने प्लस वाला। And next one is वान, वान प्रत्यय जोड़ने से धनवान, धन प्लस वान, भाग्यवान, भाग्य प्लस वान, you have to divide in that way, one word will be the meaningful word and the other one is प्रत्यय बनता है, मूल्यवान, मूल्य प्लस वान, example here written मूल्य प्लस वान। See here उपसर्ग या प्रत्यय, for that firstly you will be having a meaningful word and upasarg means front you will be showing, you will be adding a word which will change the meaning for that, and pratyay means at the ending you will be adding the word which will change the meaning for that. Here for these some more examples I will show you here. Here conclusion just you can observe clearly upasarg ya pratyay. Upasarg means the word for the meaningful word और शब्द के लिए उसके पहले, it means front we will add some उपसर्ग, with that the word meaning will be changed. pratyay means for the शब्दांश, for the word, if you add the word or the letter at the end of the, at the ending, if you add, then the meaning will for the word will be changed, that is pratyay.
For this, nothing but very easily you can understand. Upasarg means front we will add, Pratyay means at the end we will add, so that the meaning for them will be changed. నేను మాత్రం మా ఇద్దరు పిల్లల్ని క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందించే ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీ స్కూల్లో మాత్రమే చదివిస్తాను. ఇలా అన్నీ ఉన్న చోట మన పిల్లల్ని చదివిస్తేనే వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. నాకు అన్ని నెంబర్ 1 కావాలి. అందుకే నా పెద్ద మనవరాల్ని అన్ని వసతులతో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తున్న స్కూల్లోనే జాయిన్ చేశాను. ఏ స్కూల్ సార్ అది? ఉల్లంపర్రు మాంటిసరీ స్కూల్. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ లో నెంబర్ 1, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ లో నెంబర్ 1, స్పోర్ట్స్ లో నెంబర్ 1, క్యాంపస్ లో నెంబర్ 1. అది మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకు మాది బాధ్యత.